definitely. First of all, I would like to thank Kangana, for making this the whole event so special. बोलते हैं कि जब आपकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है तो आपके अपने अपने दोस्त जिनके साथ बहुत सालों से आप जुड़े रहते हैं वो लोग आपके साथ होने ज़रूरी हैं. सोनू इज वन ऑफ माय ओल्डेस्ट फ्रेंड्स. हम लोग पहले मिले थे, पूरी सर की फिल्म शूट कर रहे थे. उस समय शायद एक्टिंग भी शुरू ही कर रहे थे हम. हाँ, शुरू कर रहे थे. एंड उसी टाइम मैं अजय धामा जी को भी, जो हमारे यहाँ पे हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उनको भी मिली थी. और आई रिमेंबर कि फिर सोनू के साथ में बहुत दोस्ती हो गई और बहुत नज़दीक हैं, हिमाचल से मोका के हैं, तो उनके फादर भी हमारे घर आते थे. सो वी आर वेरी क्लोज. पर इतना बिजी रहते हैं, कभी मिलने का मौका नहीं मिलता. और आज मतलब मिलने के लिए फिल्म बनानी पड़ती है. तो लेकिन मैं आई फील रियली फॉर्चुनेट टू बी हियर टुडे फॉर सोनू. लाइक ही सेड, ये इनकी ज़िंदगी की एक अलग अभी पारी शुरू कर रहे हैं, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी हियर फॉर हिम. थैंक यू. एंड ऑफ कोर्स जब बोलते हैं कि आप ज़िंदगी की पहली पारी शुरू करते हैं तो आपके अपने लोग आपके साथ जुड़े होने बहुत ज़रूरी हैं. प्रभु सर इज़ लाइक माई ब्रदर, कंगना इज़ हनी, ऑल ऑफ अस, एंड ऑफ कोर्स अजय, एबी, लॉरेंस भाई, and of course lots of people I'm sure I'll forget because of all the people sitting. Of course Raja Ashu, who's given the music for Tutak Tutiya, Shabir bhai, Shabir Ahmed, the lyricist. And just want to say that obviously this is my first step as a producer, but just trying to give my best shot. I know that music is very, very important in any film. The script is great, and we just thought that we need to have a music which can make all the weddings special, all the celebrations special. We have grown up on these tunes of Tutak Tutiya, and now when we have this music as a part of our film, so feel really special. The whole thing is looking very, very good, and when it'll come on this public platform, I need your wishes to make this special. And of course Prabhu sir will share a few moments of the whole journey that we had together for Tutak Tutiya, and especially for the song also. I remember when we were shooting the song last week, in the morning I got a call from Prabhu sir that he had a severe backache and he was not able to move also. And we were really scared that the man who's going to dance and make us dance, he is suffering. And then Ajay, he took him to the physio, and once the music started playing, I think the whole backache was gone. I think that is why we call him Prabhu Deva, the man who defines actually what the real dancing is. Actually, no problems. I always heard stories, the job of a producer is very, very tough. Yeah, it's a tough journey. But like I said, when you have your actors who are always there for you, who come before you actually call them. So I think that makes the journey very easy. I remember when we finished this movie, we almost finished it, and we wanted 3 numbers. I remember I have a very close friend, lyricist Shabir Ahmed. I am sure he should be here. I called him. I said, we need to make some good music, and then actually, how this Rail Gaddi and Tutak Tutiya and all this music happened. So like I said, you need just friends and your well wishes, and whether you are producer or do anything in life, I think that makes life very easy. Yeah. सोनू, ज़्यादा आसान क्या है, एक्टिंग करना या फिल्म प्रेजेंट्स करना, या इन दोनों को बैलेंस करना, या और एक्सरसाइज और भी री इन्वेंट करने वाले हैं अपने आप को? मुझे लगता है प्रोड्यूसर का काम बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको 300-400-500 लोगों को जवाब देना पड़ता है कि क्या चल रहा है, फिल्म बनाते हुए भी, फिल्म बनाने के बाद भी, और जब तक आप रिलीज़ नहीं होती. सो इट्स ए pretty tough job. But like I said, जब मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म की और एक्टर बनने की इच्छा की, तो मैंने तब अपने डैड को बोला था, one day definitely I would like to become a producer and make a production house on your name. आज उन्हीं के नाम पे शक्ति सागर प्रोडक्शंस मैंने खोला डैड के नाम से. आई थिंक दिस इज इन ऑल दीज ईयर्स दैट I've been here in this city, but I think this is the most special phase of my life that I have a production house on my dad's name. So I think एक चीज़ और है सोनू, कि रीजनल सिनेमा की जो रीच है वो अब ग्लोबल हो चली है. एक तरह से पैन इंडिया हम देख रहे हैं, वहाँ बाहर की फिल्में यहाँ बन रही हैं, यहाँ की फिल्में बन. आप किस तरह की फिल्में, अगर रीजनल फिल्में बनाने का शौक हो या बनाएं, तो किस तरह की फिल्में या किस तरह के आइडियाज़ पे काम करना पसंद करेंगे? मुझे लगता है कि सिनेमा की भाषा नहीं होती. मैं चाहे तमिल फिल्म बनाऊँ, तेलुगु बनाऊँ, पंजाबी बनाऊँ या हिंदी बनाऊँ, स्क्रिप्ट्स अच्छे लगने चाहिए और आपको एक्साइट करने चाहिए कि आप सुबह उठें और काम शुरू करें एज ए प्रोड्यूसर या एज एन एक्टर. बट आई डेफिनेटली लाइक टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज ए प्रोड्यूसर इन ऑल द डिफरेंट लैंग्वेजेस. आई वर्कड इन Tamil, Telugu, Kannada, Marathi, all the films. So I think I would love to produce films in all the languages. Just need wishes, that's it.
ऑल द 3 songs looks fantastic, but कहीं ना कहीं सेकंड सॉन्ग में लगता है एक होम प्रोडक्शन का फ़ायदा आपने उठाया है. यू फ्लॉन्ट योर बॉडी एंड वट एवर द कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं वो कहाँ जाएगा? नहीं, उसमें मैंने बजट बढ़ाया, मैंने कपड़ों पे खर्चा ही नहीं किया. मैं बोला कपड़े उतारो यार, ज़रूरत नहीं है. तो उसमें प्रोड्यूसर का दिमाग काम किया. बट यू नो, मैं पूरी फिल्म जब चल रही थी ना, मेरे डायरेक्टर ने बड़ा बोला कि यार इसमें बॉडी दिखाओ, आप कपड़े उतारो, बॉडी दिखाओ. मैंने बोला नहीं सर, इसमें रहने दो. तो पूरी फिल्म में मैं बचता रहा बॉडी दिखाने से. और लेकिन जब गाना आया उसमें ज़रूरत पड़ी तो कपड़े उतर ही गए. तो आई थिंक इट्स ओके, नॉट बैड. यू नो, जब ये सोचा कि तू तक तूतियाँ बनाना है, तो बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने उस पर काम किया. कई लोगों ने, यू नो, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन सबके वर्जन्स मेरे पास आए. लेकिन फिर भी मुझे वो कन्विक्शन नहीं मिला कि जैसे मैं चाहता था वैसे कैसे बने. तो मेरे एक बड़े अच्छे अजीज़ दोस्त हैं, शबीर अहमद, अगर आगे हैं तो प्लीज़ आ जाएँ, कहीं पीछे छिपे खड़े हैं. तो यू नो, तो मैंने इनको रात को पकड़ा कि मैंने बोला कि ऐसा कुछ गाना बनाया जाए शबीर भाई. तो उन्होंने अपने एक और दोस्त जो राज आशु हैं उनको पकड़ा, वो भी आगे आ जाएं कहीं पे हैं. तो यू नो, हम लोगों ने रात भर बैठ के 3-4 रातें हम लोगों ने सारी रात बैठ के यू नो इस म्यूज़िक पे काम किया. और फिर वो जो चीज़ बनी वो आपके सामने है. आई फील कि इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी स्पेशल नंबर्स दैट दे हैव क्रिएटेड. और जब आप सुनेंगे, कल से पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया सुनेगी, तो आपको पता चलेगा कि अगर तू तक जैसा बड़ा सॉन्ग हो तो उसके लिए कितना कमाल का काम करना पड़े. आई थिंक दे हैव रियली वर्कड हार्ड टू मेक दिस वेरी वेरी स्पेशल. For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.